Morning students. In the last video of class 12th accountancy we discussed three important topic related to the chapter number 5, retirement of existing partner. The topics are preparation of retiring partner's loan account, number 2 hidden goodwill, and number 3 adjustment of capital when total capital of new firm is not given on the retirement of existing partner. Today we will move to the practical problems regarding retirement and settlement of loan. You know very well, when any employee is retired from the firm, in this situation amount due to him either paid by cash or bank, or his dues amount totally or partially transferred to his loan account. As well as in the last video we discussed preparation of partner's loan account. In this topic we discussed when any partner retired from the firm and his due amount transferred to his loan account, so the loan will be paid in annual installment with predetermined rate of interest. If rate of interest is not given in the question, so it will be assumed at 6% per annum. So today we will move to the full-fledged question related to the retirement and settlement of loan. Under this question we discussed how we will prepare the revaluation account, partner's capital account, new balance sheet of the firm after the retirement of existing partner, as well as preparation of retiring partner's loan account until paid his total amount in installment. So what is this case? Let us discuss it. It may be agreed among the partner the principal amount will be paid in a few equal installments. In such case, interest will be credited to the loan account on the basis of amount outstanding at the beginning of each year, and the amount paid will be debited to loan account. So जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जितना पैसा उसका हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन होता है 2 ईयर्स, 3 ईयर, 4 ईयर इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसके साथ साथ हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट जो होता है लोन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, और इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, जिससे हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट हम जब भी निकाले थे तो ईयरली बैलेंस पे कैलकुलेट कर रहे थे। एंड नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जितना पेमेंट हम कर देते हैं, जितना पेमेंट हम लोग करते रहते हैं उसको, किसको? रिटायरिंग पार्टनर्स को इन द इंस्टॉलमेंट, वो कहाँ जाता है? लोन अकाउंट के डेबिट में जाता है। तो लोन अकाउंट का प्रॉपरली फॉर्मेट ये था, जस्ट डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट था, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले यहाँ उसका जितना पैसा है, जैसे मान लीजिए पी रिटायर हुआ, पी की कैपिटल, यहाँ डेट, फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता था एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और फिर हम यहाँ पे उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते थे विथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के साथ, और डेट मेंशन होता था। सो बेसिकली लोन अकाउंट का फॉर्मेट यही है जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। बट आज हम एक पूरा क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें हम सब कुछ बनाएंगे जैसा हम पहले बनाते भी आए हैं बाकी क्वेश्चंस में। आज हम लोग उसके साथ साथ रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इट। ऑन 31st March 2003, the balance sheet of Pawan, Katir and Ram, who were sharing profit in proportion to their capital, stood as follows. यानी 3 पार्टनर है, पवन, कातिर एंड राम, जिनका रेशियो जो है उनके कैपिटल बैलेंस के अकॉर्डिंग है। ओके, एंड द बैलेंस शीट इज बिल्स पेबल 8,000, क्रेडिटर 12,000, जनरल रिजर्व 6,000, कैपिटल पवन 30,000, कातिर 30,000, राम 15,000, द टोटल कैपिटल इज 75,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 17,000, एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, cash at bank 30,000, debtor 10,000, less provision 200, the net amount is 9,800, stock 14,000, machinery 8,200, profit and loss 6,000, the total asset size is 1,18,000.
कातिर रिटायर्स, उससे पहले हम देख लें इनका रेशियो क्या है। तो रेशियो आपको दिख रहा है कैपिटल बैलेंस 30,000 30,000 30,000, सो द PSR विल बी, the PSR will be 2:2:1. Okay, so the profit sharing ratio among Pawan, Katir and Ram is 2:2:1. And Katir retires and the following readjustment of assets and liability have been agreed upon before the settlement of amount payable to Katir. यानी जो कातिर है, जो रिटायर कर रहा है, उसको हम जो भी पेमेंट करेंगे वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद करेंगे। द फर्स्ट वन, that out of the amount of insurance which was debited entirely to profit and loss account 1292 to be carried forward as unexpired insurance. बस अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इतनी बड़ी लाइन देखिए, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, एनी इंश्योरेंस विच आर नॉट एक्सपायर्ड इन द करेंट ईयर, it will be expired in the next year, so it will be treated as prepaid insurance, because such insurance related to the next accounting year, so it will be assets for you, it will be a profit for you, so it will be credited in the revaluation account. Okay, the second one is that the land and building be appreciated by 10%. land and building की value 10% से increase करनी है, तो you know very well ये क्या है सर, इट इज़ ऑल्सो प्रॉफिट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी। नंबर थर्ड, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी ब्रॉट अप टू 5%। आप देखो इसमें कह रहा है कि प्रोविज़न की वैल्यू 5% कर देनी है डेटर पे। ओके, तो डेटर की वैल्यू क्या है, 10,000 है, 10,000 की कितनी कर देनी है, 5% कर देनी है। यही आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, 500 कर देनी है कितना प्रोविज़न अभी एग्जिस्टिंग 200। अब बताओ प्रोविज़न बढ़ा कि घटा, प्रोविज़न इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ, प्रोविज़न इंक्रीज़ हुआ, कितने से इंक्रीज़ हुआ, 300 से, लॉस कितना हुआ 300, सो द 300 विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, पहले से प्रोविज़न तो आपने 200 बनाया हुआ है, 300 की और ज़रूरत है। द मशीनरी बी डेप्रीशिएटेड बाई 6%, मशीन को 6% से डेप्रीशिएट करना है। यू नो वेरी डेप्रीशिएशन इज द लॉस, डेप्रीशिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, सो इट विल बी अ डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड डेबिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। That a provision of 1,500 be made in respect of any outstanding bill for printing and stationery। अब आपके पास एक बिल आ गया, आउटस्टैंडिंग बिल 1,500 रुपये का। तो आउटस्टैंडिंग का क्या सेंस होता है, एसेट्स या लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। सो आपने शुरू के 5 एडजस्टमेंट तो ऐसे ही कर लिए, और उसका रिलेशन किससे, एबव 5 एडजस्टमेंट आर रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ डेबिट होंगे, कुछ क्रेडिट होंगे, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो सिंपल। यस सर। दैट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 18,000। फर्म की गुडविल कितनी होगी, 18,000 होगी सर। अब ये गुडविल क्यों दी है, यू नो वेरी वेल, यू नो कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर उसे गुडविल देता है, किस रेशो में देता है, गेनिंग रेशो में देता है। तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, किस रेशो में, उनके गेनिंग रेशो में। इसीलिए गुडविल दिया हुआ। हाँ सर, इसके लिए तो हमें गेनिंग रेशो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास हो पाएगा, क्योंकि इसमें कातिर रिटायर हो रहा है, बाकी पार्टनर क्या है, रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो उनके गेनिंग रेशो निकलेंगे पवन एंड राम के। नंबर 7, that the entire capital of the firm as newly constituted be fixed at 60,000 between Pawan and Ram in proportion to 3/4 and 1/4 after passing their accounts for adjustment. Actual cash to be paid off or to be brought in by our counterpart partner as case may be। अब देखो इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट दिया है, बट कैपिटल एडजस्टमेंट में कौन सी सिचुएशन दी है, मतलब कौन सा केस दिया हुआ है। मैंने तो बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट एक ही होता है इसमें जब टोटल कैपिटल गिवन होती है। हाँ सर, वही दिया है। इन दिस सिचुएशन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। यस सर, दी हुआ। टोटल कैपिटल कितनी है, 60,000। उसी को आपको पवन और राम के बीच में किस रेशो में बांटना है, 3/4 एंड 1/4, यानी पवन और राम के बीच में 3:1 में 60,000 को बांट देना है। एंड सच कैपिटल विल बी नोन एज द न्यू कैपिटल ऑफ पवन एंड राम रिस्पेक्टिवली। ओके सर,
और जो कम ज़्यादा पैसा होगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम कैश से एडजस्ट करेंगे। जो मैं बार बार बता रहा हूँ, व्हाट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल? एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब एक्चुअल कैपिटल विच आर अकाउंटेड आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट, एंड न्यू कैपिटल जो हम 60,000 को बांटेंगे ना 3:1 में, उसके अकॉर्डिंग जो आएगी। नंबर 8, दैट द कातिर बी पे 5,000 इन कैश एंड बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कह रहा है कातिर को जितना बैलेंस आएगा उसमें से 5,000 पे कर दो, 5,000 तुरंत दे दो, बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो देखो इसमें दोनों आ गया कि मैंने कुछ पैसा कातिर को कैश में पे किया, कुछ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद उसे हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। हिज लोन अकाउंट पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पे करना है। ओके, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% इज गिवन। अगर नहीं गिवन होता तो हम 6% पर नम पे चार्ज करते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। आप कह रहे हैं नेसेसरी अकाउंट बनाई, तो नेसेसरी अकाउंट्स में क्या क्या आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट तो कही रहा है। ऑफ द फर्म ऑफ पवन एंड राम का बनाइए। ऑल्सो प्रिपेयर कातिर्स लोन अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली सेटल्ड। और रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना है। कब तक का बनाना है? जब तक कि पूरा पे ना हो जाए। सवाल ये उठता है कि हम रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कब बना पाएंगे? शुरू में बनाएंगे, एंड में बनाएंगे कि मिड में बनाएंगे? तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि पहले तो कातिर को कितना पे करना है ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना लें। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम तब तक नहीं बना सकते जब तक रीवैल्यूएशन ना बना लें। तो अगर क्वेश्चन में सारा अकाउंट पूछता है, इफ़ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नेसेसरी अकाउंट एज वेल एज द बैलेंस शीट एज वेल एज द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो आई सजेस्ट टू यू कि फर्स्टली यू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, देयर आफ्टर यू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर आफ्टर यू प्रिपेयर बैलेंस शीट, एंड एट द एंड, एट द लास्ट यू प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के बाद ही आपको पता चलेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में जानकारी पता चलेगा कि भैया उसको कितना देना है, तब ना उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन जो मैं जनरली डिस्कस भी कर चुका हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। सो उसको मैं जल्दी फिनिश करता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ऊपर से 7 एडजस्टमेंट को स्टडी किया था, सॉरी 5th एडजस्टमेंट को, 5वां एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थे। इसमें ये जो था अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाना है। 10% अप्रिशिएटेड है, ये भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। ये इसमें 300 का लॉस हुआ था, मैंने अभी वर्किंग आपको करके दिखाया था, तो ये डेबिट में जाएगा। 300 डेप्रीशिएटेड है, डेबिट में जाएगा, ये भी डेबिट में जाएगा। तो 3 आइटम्स विल बी डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, वेयर इज द 2 आइटम्स इन क्रेडिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग देख लेते हैं ईजिली। यस सर। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 300, मशीनरी डेप्रीशिएट हुई थी 492, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग 1500, और इधर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1292 इट इज़ योर एसेट्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रीपेड इंश्योरेंस। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड हुई थी 5000 से, सो क्रेडिटेड। सो द प्रॉफिट हुआ 6292 और लॉस हुआ 22,092। सो 6292 का प्रॉफिट, 2292 का loss. So net profit on revaluation, that is 4,000. So 4,000 will be distributed among Pawan, Katir and Ram in their capital ratio, and capital ratios also discussed in the past slides, that is 2:2:1. An amount will be for Pawan 1600, Katir is 1600 and Ram for 800. Okay. दूसरा पार्ट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैंने आपको क्या समझाया, क्या कर लेना चाहिए? कैपिटल अकाउंट करने से पहले सर आपने कहा कि गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। सो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना होता है? गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमको ओल्ड और न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। मुझे लगा कि इसमें कोई वर्किंग दिया होगा, बट इस क्वेश्चन में कोई वर्किंग गिवन नहीं है। मैं देख लेता हूँ कि कोई वर्किंग गिवन है। नहीं, इसमें कोई वर्किंग गिवन नहीं है। मैं आपको खुद वर्किंग करके दिखाता हूँ। ओके। सबसे पहले तो ये बात है
कि द पवन, कातिर और राम का ओल्ड रेशियो है 2:2:1। कातिर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो पवन और राम के बीच का न्यू रेशियो क्या है 2:1। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये गिवन नहीं है कि व्हाट इज़ द न्यू रेशियो बिटवीन पवन एंड राम। आप कहोगे सर दिया है 3/4 एंड 1/4, तो मैं आपको बता दूं उस वहाँ सेंटेंस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि 3/4 इज़ अ 1/4 इज़ अ न्यू रेशियो। वो तो बस बता रहा है कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म है, वो दोनों के बीच में किस रेशियो में बटेगी। सो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़ इट। इसको लेकर एक नोट भी गिवन है क्वेश्चन के एंड में, ये देखिए लिखा हुआ है 3/4 and 1/4 is not the profit sharing ratio. Only the capital of the new firm amounted to 60,000 to be adjusted in this ratio. यानी जो 3/4 और 1/4 दिया है वो पवन और राम के बीच का न्यू रेशियो नहीं है, वो बस इसलिए दिया है कि आपको जो कैपिटल एडजस्टमेंट करना है वो इसी रेशियो में करना है। हाँ, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू रेशियो में करते हैं, बट जब क्वेश्चन में क्लियरली दे दे कि इसी रेशियो में करिए तो उसी रेशियो में करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कह दे कि हाँ यही नहीं रेशियो है तो न्यू रेशियो उसको मान लेंगे। लेकिन जब तक क्वेश्चन में कहेगा नहीं कि वो रेशियो न्यू रेशियो है, हम अपने से एज्यूम करके उसे न्यू रेशियो नहीं मान सकते। तो जब कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं होता है, यू नो वेरी वेल कि ओल्ड रेशियो दिया है 2:2:1, पवन, कातिर और राम का। कातिर जा रहा है घर, पवन और राम बचे, उनका रेशियो हो गया 2:1। यही इनका न्यू रेशियो है और यही इनका गेनिंग रेशियो है। तो यू नो वेरी वेल कि पवन एंड कातिर का गेनिंग रेशियो इज 2:1। सो यू नो वेरी वेल गुडविल कौन देता है। गुडविल की अमाउंट है 18,000। तो पहला और स्टेप होता है कि हम कातिर का गुडविल निकालें। कातिर की गुडविल होगी 18,000 इंटू ओल्ड रेशियो है ना 2:2:1, तो कातिर का तो 2/5, तो आ जाएगी गुडविल 7,200। अब ये 7,200 कौन देगा, 2:1 में देंगे लोग। कौन देगा, पवन एंड राम। तो 7,200 मिलेगा पवन डेबिट, राम डेबिट टू कातिर, टोटल मिलेगा 7,200। और इसको देंगे 2/3 में और 1/3 में, क्योंकि यही इनका क्या है गेनिंग रेशियो है 2:1 between Pawan and Ram. It is also a new ratio for Pawan and Ram. So the ratio will be 4,800 and 2,400 for Pawan and Ram respectively. So तो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कर लिया कि टोटल गुडविल प्रोवाइड होगी कातिर को 7,200, जिसमें से 4,800 जो है, यही आया था ना 4,800 जो है, कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, एक बार निकाल लेता हूँ। 18,000 का 2/5 7,200 मिलेगा, ओके, जिसमें से P देगा 2/3 और R देगा 1/3, 2400 और हाँ सही है, ओके। 4,800 विल बी गिवन बाई पवन एंड 2,400 इज गिवन बाई राम। कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया, ओके। सो वी विल मूव टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट for the Pawan, Katir and Ram. First of all, we take the opening balance of Pawan and Katir and Ram, which are also given in the opening balance sheet in the question. Thereafter, you know very well, general reserve is given. पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है जिसे हम बांट सकते हैं। हाँ सर, देख लेते हैं फटाफट देखिए। एक है जनरल रिजर्व जिसे हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्ट में बांटते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कहोगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, नहीं, ये तो लाइबिलिटी होती है, इसे हमने बांटने नहीं है, ये न्यू बैलेंस शीट में डिसाइड होगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय हम उसी रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं जिस रिजर्व पे पार्टनर्स का हक होता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयज़ का हक है, सो उसे हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड नहीं करते। सो द जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। सो हम लोग, और ये ओपनिंग कैपिटल भी आप देख लीजिए, पवन, कातिर एंड राम की 30,000, 15,000। सो ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ सर, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, जनरल रिजर्व लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, 3 चीज़ें हो गई। और नेक्स्ट क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था कितना, 1600, 800,
यानी 1600 तो उसको भी देखिए आपने रिवोल्यूशन में रिकॉर्ड किया होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैंने अभी जस्ट बताया कि बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो कर लिया हमने सर, कर लिया, यस। अभी मैंने जस्ट बताया कि हमने कर लिया है। तो हमने पता किया कि पवन देगा 4800 एंड राम विल बी प्रोवाइडेड बाई 2400। तो कातिर को टोटल गुडविल मिल गई 7200 की। तो पवन के अकाउंट से कितने कट गए 4800, राम के में से कितने कट गए 2400। यू नो कि जो देता है उसके डेबिट में जाता है और जो लेता है उसके क्रेडिट में जाता है। सो द कातिर को मिलेगा सो क्रेडिट हुआ, और पवन और राम देंगे सो उनके डेबिट में गया। उसके बाद हम लोगों ने पवन, कातिर एंड राम तीनों की कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया कि पवन है 26,800, कातिर का अमाउंट है 38,800 एंड राम का ड्यू अमाउंट है 13,400। यहाँ ड्यू अमाउंट मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, कातिर का ड्यू अमाउंट है क्योंकि कातिर तो रिटायर हो रहा है, पवन और राम बच रहे हैं। तो पवन और राम को जो हम पेमेंट करेंगे सो हम लोगों ने पवन, कातिर एंड राम का बैलेंस निकाल लिया। इसमें जो कातिर का बैलेंस है वो उसका ड्यू अमाउंट है कि हमें टोटल उसको 38,800 देना है, और पवन और राम की कैपिटल जो एग्जिस्टिंग कैपिटल इसी को बोलते हैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल द एक्चुअल कैपिटल आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, दैट इज़ 26,800 फॉर पवन एंड 13,400 फॉर राम। सो अब हमें दो बात करनी है। एक तो कातिर जा रहा है घर छोड़ के, यू नो वेरी वेल, यस सर जा रहा है, बहुत दुख की बात है, जा रहा है। उसको हमें 5,000 इमीडिएटली कैश में पेमेंट करना है एज़ पर दी डिमांड ऑफ क्वेश्चन, और बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो कातिर का एडजस्टमेंट नहीं होगा। रही बात पवन और राम की, तो उसकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 60,000, जिसे हम पवन और राम के बीच में 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3/4 एंड 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पवन और राम के लिए। ये दो काम करना है। सो पहले हम लोग कुछ काम देख लेते हैं इसमें करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, उनके बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया, यहाँ कैलकुलेट किया, ट्रांसफ़र किया, और ये कातिर के कैपिटल में 5,000 इमीडिएटली पे किया, और बाकी पैसा कितना बचा, द बैलेंस अमाउंट विल बी 33,800 will be transferred to Katir's loan account according to the question, because of question says 5,000 transferred by cash and the remaining amount will be transferred to his loan account, ऐसा एज इट इज़ किया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगी 60,000, जिसे पवन और कातिर के बीच, पवन और राम के बीच में 3/4 और 1/4 में बांट दो। तो ये कितना हो जाएगा 15,000 and 45,000. So the new capital of Pawan and Ram is 45,000 and 15,000, जैसा आप देख रहे हो। हाँ सर, ये तो बहुत आसान आपने बता दिया। 60,000 गिवन, और उसको हमें पवन और राम के बीच में किस रेशियो में बांटना था, 3/4 एंड 1/4 में बांट दिया। उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल को देखो, खुद ही क्लियर हो जाएगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल उनकी 26,000 है, 13,400 है, और न्यू कैपिटल इतनी है। तो पवन की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 26,800, जबकि न्यू कैपिटल है उसकी 45,000, तो पवन को लाना पड़ेगा 18,200 फॉर्म। वेयर इज़ फॉर राम एग्जिस्टिंग कैपिटल इज़ 13,400, वेयर इज़ अ न्यू कैपिटल फॉर राम दैट इज़ 15,000। सो यू नो वेरी वेल कि यहाँ राम को भी पैसा लाना पड़ेगा, दैट इज़ 1,600। ओके, तो इसमें इस क्वेश्चन में कैश में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? बिकॉज ऑफ इस क्वेश्चन में देखिए कुछ कैश का या बैंक का बैलेंस होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। दूसरा, इस क्वेश्चन में कातिर जा रहा है, उसको भी हम 5,000 रुपये का पे कर रहे हैं, तो ये भी पैसा माइनस होगा। ये दोनों लोग पैसा लेकर आ रहे हैं, पवन और राम, तो ये कैश में प्लस होगा। तो इस क्वेश्चन में जब हम कैश बैलेंस लिखेंगे या बैंक बैलेंस लिखेंगे इन द बैलेंस शीट एसेट साइड, सो उसका इफेक्ट हमारे कैश अकाउंट में पड़ेगा और कैश में हम सारे एडजस्टमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पहले से कैश का बैलेंस है 30,000, और जब हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो हमने ये देखा कि 5,000 रुपीज़ का पे हो रहा है, यानी 30,000 पहले से था, 5,000 रुपीज़ का पे हो रहा है, पेड टू कातिर, 18,200 पवन लेकर आ रहा है, और 1,600 जो है वो राम लेके आ रहा है। सो हमारा जो कैश बैलेंस है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। ओके, सो नाउ वी विल कैश बैलेंस इज 44,800
30,000 माइनस 5,000 प्लस 18,200 प्लस 1,600। ओके, और फिर जब हम लोग बैलेंस शीट में मूव करेंगे तो यू नो वेरी वेल कि ये जो 45,000 एंड 15,000 है, इट विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, कातिर्स लोन अकाउंट शोड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जैसा हम लोग जानते हैं उसको भी हम लोग शो कराएंगे। और बैलेंस शीट के कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जिसे हम शो नहीं कराएंगे, जैसे जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया है, सो उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। रही बात न्यू बैलेंस शीट में, तो उसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी न्यू टर्म्स आए होंगे, न्यू वैल्यूज़ आए होंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एसेट साइड में 1290 एज अ प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, लैंड एंड बिल्डिंग में 5,000 की वैल्यू ऐड कर देंगे, प्रोविज़न में 300 का इंक्रीजमेंट हुआ है, सो द अपडेटर में से 200 माइनस नहीं होगा, 300 और माइनस होगा, यानी टोटल 500 माइनस होगा। मशीनरी की वैल्यू 492 से डिक्लाइन कर देंगे और एक न्यू लाइबिलिटी 1500 की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो होगी। सो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, सो हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं अपने मन में। तो पहले इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैश का बैलेंस क्या है, दूसरा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी का पोजीशन में क्या चेंजेस हुआ, और थर्ड जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी कई सारे कैश के मूवमेंट होते हैं, एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट को भी हम जस्टिफाई करते हैं। सो लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग, एसेट्स में कैश एट बैंक। अपडेटर में देखो अब 500 माइनस क्यों, जबकि क्वेश्चन में 200 ही है, तो 300 एडिशनल माइनस किया गया है। और भी वैल्यू देखो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, कातर्स का लोन अकाउंट है, इधर स्टॉक है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जिसे हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस कहते हैं, एसेट्स, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और न्यू कैपिटल ऑफ पवन एंड नाम दैट इज़ 45,000 एंड 15,000 आपने लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया हुआ है। सो द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज 60,000। यही क्वेश्चन में कह रहा था कि नई फर्म की जो कैपिटल होगी वो 60,000 होगी, उसे हमने एडजस्टमेंट के थ्रू प्रेजेंट आपको कर दिया है। अब बात करते हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एज वेल एज एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि हम को टोटल कातर को देना था 38,800, जिसमें 5,000 तुरंत दे दिया। अब उसको लोन अकाउंट में कितना है 33,800, जिसे हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, और विथ 8% इंटरेस्ट, यानी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम देंगे इसको, तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। द अमाउंट पेबल टू कातिर डेट इज 16,900 एनुअली according to this question, as well as plus 8% interest, 8% का इंटरेस्ट पे देंगे। So first of all we prepare the format. So when we take the format of Katir's loan account, so we find that Katir's loan account, the format is date, particular amount, date, particular amount. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2004 को, उसकी कैपिटल लिखा जो उसका अमाउंट ड्यू था इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में था, तो लोन अकाउंट के किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि पोस्टिंग हमेशा अपोजिट साइड में होती है। एंट्री भी क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शो हो रहा था, तो लोन अकाउंट के किस साइड प्रेजेंट होगा, क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट देना था 33,800। ये इस साल का बैलेंस है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर 2003 1 अप्रैल का एंड कब होगा, 31 मार्च 2004 होगा। उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना, ईयरली बैलेंस का 8%। इस समय उसके मेरे ऊपर कितना लोन है 33,800, सो इंटरेस्ट कितना आया 2,704 रुपीज़। फिर यू नो वेरी वेल हमें उसे इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की बनती है 16,900 की, ओके, प्लस इंटरेस्ट कितना आया था 2,704, तो टोटल अमाउंट पेड टू द कातिर्स लोन इज 19,604 रुपीज़। तो पहले साल पे हो गया। अब कितना बचा उसके अकाउंट में 16,900 31 मार्च 2004 को। सो हमने 31 मार्च 2004 के क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2004 में ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया 16,900। अब यू नो वेरी वेल, अब फिर एंड होगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। एंड कब होगा 2005 31 मार्च। द अमाउंट
ऑफ इंटरेस्ट दैट इज बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने पे चार्ज अब होगा 16,900। ये बात भी आपको याद रखनी है, व्हेन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बैलेंस। पहले साल आपने देखा 33,800 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था, दूसरे ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 16,900 पे, सो द सेकेंड इंटरेस्ट विल बी 1352 एंड नाउ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अब तो हम इसको पूरा पे कर देना, क्योंकि 2 साल में पे करना था, तो 2003-4 में पहला पेमेंट कर दिया, यानी एट द एंड ऑफ 2004 सॉरी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2003-4, और फिर सेकेंड ईयर क्या होगा 4/5, तो 4/5 का एंड कब होगा 31 मार्च 2005 में। आपने पे कितना करना था 16,900 प्लस इंटरेस्ट है 1352, ये आएगा 18,252 रुपीज़। सो इस तरह से हम लोग रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जब तक कि उसका पेमेंट ना हो जाए, टिल द फाइनली पेड, यानी जब तक कि उसको हम पूरा पे नहीं कर, देखिए उसको पूरा पे कर दिया। पेमेंट कब हुआ 2005, लेकिन हमने उसे पहले ही बना लिया कि लोन अकाउंट कैसे बनाना है। सो टुडे आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे जो हम लोगों ने कल के वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े थे उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है इन द बिग क्वेश्चन, इन द लार्ज क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं। सो प्लीज़ अवेयर अबाउट इट कि आपको ये मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए जिसमें सारा कुछ पूछेगा। कल के हम वीडियोज़ में प्रेजेंट होंगे एक अलग टॉपिक को लेकर, उसमें कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा, हो सकता है हिडन गुडविल हो सकता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो व्हेन टोटल गुडविल ऑफ फर्म इज़ नॉट गिवन। सो कल के वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे, बट आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिक्स क्वेश्चन इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सबसे पहले प्रिपेयर किया रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनता था, देयर आफ्टर वी प्रिपेयर्ड कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट की खास बात ये थी कि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट था व्हेन द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज़ गिवन, न्यू फर्म की कैपिटल भी गिवन थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें रिटायरिंग पार्टनर्स का पेमेंट दोनों तरीके से किया गया है, पार्शली पेमेंट जो है कैश से किया गया है और पार्शली पेमेंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, एज वेल एज इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ है और उसमें कुछ पैसा ले आया गया है और कुछ पैसा लेके गए हैं। जैसे रिटायरिंग पार्टनर 5,000 रुपये लेके गया और पवन राम ने कुछ पैसा लेकर आए, सो उसका इफेक्ट हमारे कैश बैलेंस पे पड़ा है। कुछ स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, सो उसे बैलेंस शीट में बनाते वक्त हमने उसको रिकॉर्ड भी किया है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो इन दिस क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किया है कार्तिर्स लोन अकाउंट। कार्तिर्स लोन अकाउंट में हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया है, हमने जो उसकी ड्यू अमाउंट थी विच आर पेड इन द 2 इक्वली इंस्टॉलमेंट दैट इज 16,900 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर annum। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन ईयरली बैलेंस। इंटरेस्ट 8% टोटल अमाउंट पे चार्ज नहीं होता, वो हमेशा ईयरली बैलेंस पे चार्ज होता है। सो आई होप कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा आपको समझ में आएगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट और सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।